गुड मॉर्निंग बेटा। आज ਜਿਹੜਾ अपना टॉपिक है दैट इज़ ए कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल स्टेट देखो ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੈप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ओके ट्रू सोल्यूशन बारे आप पढ़िया तो बेसिकली तीन तरह दी स्टेट अपने होंदियां। वन इज़ ट्रू सोल्यूशन, सैकेंड इज़ कॉल्ड कोलाइडल स्टेट एंड थर्ड इज़ कॉल्ड सस्पेंशन। सो तीन ही पार्ट ऑफ मिक्सचर है, ठीक है। तो मिक्सचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਨ ਇਜ਼ ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਸੋਲਿਊਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਹ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਸਟੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ है दैट इज़ सल्यूट आप गल कर सकते इत्थे जिहड़ा डिजोल्व होया है, ठीक है, उहदा जिहड़ा साइज़ है वो इट इज़ लैस दैन 1 नैनोमीटर। इन केस ऑफ सस्पेंशन जिहड़ा इहदा साइज़ है इट इज़ इत्थे लैस है, इट इज़ ग्रेटर दैन 1 नैनोमीटर। But in case of colloidal state that is in between 1 nanometer to 1000 nanometer। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ 1 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ 1 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਡ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਡ ਆ ਗਈ। ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕੰਜਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਲਟ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਓ ਦ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਸੋਲਿਊਟ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਤੇ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਿਊਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਟੇਟ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸਟੇਟ, this one. Now classification of colloids. Classification of colloids। ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੈ वो डिफरेंट है फॉर डिफरेंट
nature is on the basis of physical state of dispersed phase and medium। दूजा है nature of interaction between dispersed phase and medium। ਤੇ ਤੀਜਾ ਹੈ type of particle of the dispersed phase। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 3 ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਤੇ ਡਿਸਪਰਸਡ ਮੀਡੀਅਮ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਸ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸਪਰਸਡ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਆਫ ਤਾਂ ਕੋਲਾਈਡ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, ਜੇ ਆ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੋਲਿਡ ਸੋਲ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਇਹ ਲਿਕਵਿਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸਿੰਪਲ ਸੋਲ। ਜੇ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਡਿਸਪਰਸ ਮੀਡੀਅਮ ਗੈਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਐਰੋਸੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਰੋਸੋਲ ਦੀਆਂ ਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮੋਕ, एरोसोल की आ गई, स्मोक आ गई, डस्ट आ गई। सो ऑल ऑफ दीज इज़ अ पार्ट ऑफ एरोसोल, है ना। इस तरह सॉलिड सोल अलाय होगी, जिन्नियां में अलाय हैगियां। कलर्ड ग्लास हो गए, सिंपल सोल दे विच अपने कोल पेंट्स आ गए, स्टार्च आ गया। सो दैट्स इट। इस तरह हुण आपां इत्थे डिस्पर्स्ड फेस की लिया सी सॉलिड, हुण आपां डिस्पर्स्ड फेस लै सकदे हां लिक्विड। ये लिक्विड इधर आ गया अपने कोले सॉलिड, फिर डिस्पर्स फिर लिक्विड ते लिक्विड लिक्विड ते गैस। तो जो डिस्पर्स फेस लिक्विड है, डिस्पर्स मीडियम जोड़ा वो सॉलिड है, दैट टाइप इज़ कॉल्ड जैल। हुण जैल तुसीं देखते हैं जैली बटर सारे ये आ गए, है ना, चीज़, दैट्स इट। इस तरह दोवें लिक्विड है, इनू की बोलते हैं मल्शन। मल्शन च की आ गया अपने को मिल्क, हेयर क्रीम, ऑयल, मेडिसन। सो ऑल ऑफ दीज लाई इन दिस क्लास। उस तो बाद आ गया लिक्विड ते गैस। ये आ गया अपने को एरोसोल अगेन। तो डिस्पर्स्ड फेस जोड़ा लिक्विड है, ज़्यादा अमाउंट जोड़ा मीडियम है गैस है, वो थोड़ा थोड़ा लिक्विड होया है। इनू आप मिस्ट कह सकते हैं, फॉग कह सकते हैं, सर्दियों के फॉग जमती है, ज़्यादा तो गैस ही होंगी है, तो डिस्पै सस्पेंडेड पार्टिकल जोड़े लिक्विड के होंगे। सो दैट्स इट। इस तरह हुण आपां गल कर सकते हैं जिहदे डिस्पर्स्ड फेस जोड़ा आप फिक्स कर लिया, दैट इज़ गैस। तो डिस्पर्शन मीडियम अपने को की आ गया सॉलिड, तो गैस तो लिक्विड। गैस गैस होंदा ही नहीं। तो जेकर गैस डिस्पर्स्ड फेज है तो मीडियम सॉलिड है, तो मतलब ज़्यादा सॉलिड है, थोड़ा जरा वो गैस है, तो वो की आ गई अपने को फोम।
फोम लैदर, ठीक है, ये सॉलिड सोल भी कह देंगे इनू, ये भी एक सॉलिड सोल ही है। या गैस लिक्विड है तो फोम जी शेविंग फोम होंगी है, ठीक है, फ्रॉथ, झग, विपिंग क्रीम केक के उत्ते लगी होंगी है। सो ये जोड़ा क्लासीफिकेशन सी ये फिजिकल स्टेट भी किहड़ा डिस्पर्शन मीडियम की तो फेस की फिजिकल स्टेट की है, वो सॉलिड गैस 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 लिक्विड एक्सैक्ट्रा एक्सैक्ट्रा। सो दीज आर दैट। सैकेंड क्लासीफिकेशन अपने को आ गई, दैट इज़ बेस्ड ऑन किधर गया है। हाँ जी बेटा, मैकेनिज्म ऑफ माइसेल फॉर्मेशन एंड सोप एक्शन। किस तरीके नाल सोप काम करता है। जिहड़ा साडा सोप है ये की है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, और यू कैन से सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड C17H35 ते COONA आर नेगेटिव आर पॉजिटिव। तो C17H35 की है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 तो 17, ठीक है। C17 आ गया। आ कार्बन आ गई दिस वन, एक पासे कीटो ग्रुप है, दूजे पासे सोडियम है। तो आ जी लॉन्ग चेन है ये की है, हाइड्रोकार्बन। दिस इज़ अ हाइड्रोकार्बन। तो ये की होंगी है, दैट इज़ नॉन पोलर। तो नॉन पोलर जोड़ा पानी च डिजोल्व नहीं होंदा, इस करके ये हाइड्रोफोबिक है। तो आह वाला जोड़ा हिस्सा है हैड है, दैट इज़ अ पोलर एंड हाइड्रोफिलिक।
Phyllic mean it is water loving, ये सारी वाटर लविंग है। ठीक है, तो इनू आप सिंपली रिप्रजेंट कर दें इस तरह, आ हैड जिहड़ा ते आ टेल, टेल हाइड्रोकार्बन है, हैड जिहड़ा है वो पोलर नेचर का है। तो जदों असी पानी दे विच इहनूं पाउने हैं तो इहदी अमाउंट घट होंदी है, तो इस तरीके नाल अरेंज हो जाता है। हैड जिहड़े वाटर लविंग है वाटर वाल चले जाते हैं, तो टेल जिहड़ी है वाटर तो दूर हवे चली जाती है। पर यह उन्ना चेर है जिन्ना चਿਰ कंसनट्रेशन घट होंदी है, क्योंकि जिवें जिवें कंसनट्रेशन वधदी जाएगी तो उन्होंने बल्क 'च जाना ही पैना है। पर बल्क दे विच किवें जाण, टेल तो पानी नाल टच ही नहीं कर सकती। तो फिर की हुंदा है, तो उदों जदों आपां सर्फ पाउने आ तो तुसीं देखिआ होना बबल्स बन जाते हैं, तो उत्थे एयर हुंदी है, एयर इंट्रैप होई हुंदी बबल 'च। तो जिहड़ी टेल है कित्थे चली जाती है, वो अंदर जिथे हवा है, इस तरीके नाल टेल जिहड़ी है अंदर, ते हैड जिहड़े आ वो बाहर, क्योंकि हैड जिहड़े आ दे आर वाटर लविंग, दे आर पोलर इन नेचर। तो ये इस अरेंजमेंट को की बोलते हैं माइसेल, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड माइसलाइजेशन। Concentration where it is formed is called critical micellization concentration, and temperature required for is called Kraft temperature. This is called Kraft temperature. So इस तरीके नाल जिहड़ा माइसलाइजेशन बनती है। हुण सोप किवें काम करदा, देखो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਟ ਤੇ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਤੇ ਡਰਟ ਹੈ ਬੋਥ ਆਰ ਨੋਨ ਪੋਲਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਪਾਰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਟੇਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੇਲਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਲੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, वाटर के नाल। आ इंट्रैक्शन है। हुण जदों असीं कपड़े नूं खंगालांगे, कपड़े नूं रगड़ांगे, पानी दे विच सर्फ दे विच उहनूं मसलांगे, तां जिहड़ियां टेल्स है वो पूरी तरह ऑयल ते डर्ट नूं इमल्शन 'च चेंज कर देणगीਆਂ, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स दे विच कन्वर्ट कर देणगीਆਂ। ब्रेक डाउन हो जाएगा ऑयल इनटू इमल्शन। ते उस तो बाद जिवें असीं कपड़े 'चों पानी नूं बाहर कड्डांगे, पानी के नाल हैड बाहर जाएंगे, हैड के नाल टेल बाहर जाऊगी, टेल ऑयल के नाल जुड़ी हुई है, तो वो ऑयल नूं खिंच के कपड़े दे विचों बाहर कढ़ देगी। सो दैट इज़ अ क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, तो तुहाडा कपड़ा साफ हो जाएगा। सो इस तरीके नाल जिहड़ा ये वर्क कर। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन दी प्रॉपर्टीज़ की है। वन फर्स्ट इज़ फिजिकल, फिजिकली वेखण नूं किहो जिहा लगदा है, हैट्रोजीनियस, मीन नॉट लाइक ए ट्रू सोल्यूशन, वो होमोजीनियस हुंदा है। जिहड़ा होमोजीनियस मिक्सचर है उस ट्रू सोल्यूशन हुंदा है। पर जे हैट्रोजीनियस का मतलब जिथे कंपोजिशन डिस्पर्स्ड फेस ते मीडियम की सारी किते सेम नहीं हैगी। जिवें मिल्क आ, मिल्क दे विच जिहड़ी प्रोटीन है तो वाटर कंपोनेंट है वो सारे किते इक्वल नहीं हुंदा। माइक्रोस्कोपिकली देखिए तो पता लग जाता है। स्टेबल नेचर, नेचर इहदी स्टेबल ही है, सस्पेंशन वांगू थल्ले बैठ नहीं जाती मड। इहदे विच ये नहीं गा कि मिल्क नूं रख दईए तो प्रोटीन थल्ले बैठ जू, फैट थल्ले बैठ जू, नो। सो इट इज़ ए स्टेबल इन नेचर। फिल्ट्राबिलिटी, ऑर्डनरी फिल्टर पेपर के विचों तो पास हो जाते हैं, क्योंकि साइज़ जिहड़ा है वो ऑर्डनरी फिल्टर पेपर के
पोर्स तो छोटा हुंदा है, ठीक है। बट एनीमल ते वैजीटेबल मैंबरेन जिन्हों परचमेंट मैंबरेन बोलते हैं वो नहीं पास होंगे, वो फस जाते हैं। सो ये एक फिल्टरेबिलिटी जी प्रॉपर्टी है वो ये हैगी है। सैकेंड आ गया अपने को प्रॉपर्टी कोलीगेटिव प्रॉपर्टी। कोलीगेटिव प्रॉपर्टी सो कोलीगेटिव प्रॉपर्टी की होंगी है, ये आप सोल्यूशन वाले चैप्टर के पढ़िया है कि जिहड़ा कोई भी प्रॉपर्टी सल्यूट पार्टिकल, तो इत्थे आ गया डिस्पर्स्ड फेस, वो उपर डिपेंड करती है। जिन्ने नंबर ऑफ पार्टिकल या सल्यूट के ज़्यादा होंगे उन्नी वो कोलीगेटिव मीन वो ऑस्मोटिक प्रैशर ज़्यादा होएगा, वो एलीवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होएगा। सो ये भी जी एक कोलीगेटिव प्रॉपर्टी दियाँ हैगियां, जिहड़ा ऑस्मोटिक प्रैशर है, ऑस्मोटिक pressure, that is a colligative property of the colloidal solution, though smaller than true solution। जे ट्रू सोल्यूशन तो मुकाबले वेखिए तो ऑस्मोटिक प्रैशर इसका घट होंदा, क्योंकि मॉलीक्यूल एसोसीएट जोड़े सल्यूट पार्टिकल या डिस्पर्स्ड फेस के मॉलीक्यूल है वो एसोसीएटेड होए होंदे है, उन्होंने नंबर घट होंदा दैन दैट ऑफ ट्रू सोल्यूशन। तो इस करके नैचुरली ये कोलीगेटिव प्रॉपर्टी घट ही ऑबजर्व होएगी। नैक्सट इज़ मकैनिकल प्रॉपर्टी। मकैनिकल प्रॉपर्टी दे विच की आ जाता, दैट इज़ ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट मीन जिग जैग, कोई मॉलीक्यूल इधर तुरा फिरदा, कोई इधर तुरा फिरदा, कोई इधर तुरा फिरदा। सो दैट इज़ called Brownian movement, which was observed by the British botanist Robert Brown। ठीक है, उन्हें देखा सीगा जिवें गैसिस दे विच हुंदी है सिमिलर प्रॉपर्टी इन्हां च हुंदी है। जे असीं माइक्रोस्कोप के थल्ले देखीए तो जिहड़े डिस्पर्स्ड फेस वाले पार्टिकल है वो टिके नहीं पैंदे, मूव करते रहंदे हैं, कोई इधर नूं कोई उधर नूं। ठीक है, सो दैट इज़ आल्सो इट्स प्रॉपर्टी। नैक्सट इज़ टिंडल इफैक्ट, इन्हों असीं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दैट इज़ टिंडल इफैक्ट। टिंडल इफैक्ट की हुंदा है कि जदों असीं रे ऑफ लाइट कोलाइडल सोल्यूशन चों पास करते हैं तो उहदा जिहड़ा रस्ता है, उहदा जिहड़ा पाथ है वो सानू ट्रेस हुंदा है कि इस तरीके नाल जिहड़ी ये लाइट है उहदे चों पास हो रही है। तो वी कैन ट्रेस द पाथ ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि बेटा ये जिहड़े मॉलीक्यूल है इन्हां दा साइज़ ना बहुत छोटा है तो ना बहुत वड्डा है। इस करके जो लाइट फॉल होंदी है इट काज स्कैटरिंग, ये स्कैटरिंग करती है जिहड़ी हरेक मॉलीक्यूल के उपर। तो जो स्कैटरिंग हरेक मॉलीक्यूल तो होगी तो वह जिहड़ा पाथ है वह जिहड़ा हर मॉलीक्यूल दे जाके जो टकरा के साडी अख दे विच रिफ्लैक्ट होकर जाएगी तो सानू दी लोकेशन पता लगेगी। तो हौली हौली वो कोलैक्टिव लोकेशन की बोलते हैं, पाथ ही बोलते हैं। तो वह पाथ जिहड़ा वो सानू दिखाई देन लग पेगा। सो दैट इज़ द रीज़न कि जदों भी असी कोलाइडल सोल्यूशन दे विचों बैटरी या लाइट या मोनोक्रोमैटिक लाइट पास करते हैं तो वह रस्ता जिहड़ा सानू दिखन लग पैंदा। दैट फिनोमिना इज़ गिवन बाय द टिंडल एंड इट इज़ नोन एज टिंडल इफैक्ट।